یہ بھی گزار کرتا چلو کہ یہاں پر مختلف ریپرزنٹیشن پہلے ہی آ چکی ہے جن کی جو اسپیکر جو کہ اپنے اپنے علاقے کے مسائل یہاں پر اجاگر کریں گے. سب سے پہلے یہ ہے کسان بورڈ کے ممبر, ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا مسئلہ یہاں پر اجاگر. اس پبلک اس کا مقصد میں آپ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. خاص میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو زیادہ سنیں اگر میں بولوں یا صاحب بولے تو ہم سیدھا اسٹارٹ کرتے ہیں, مطلب کی بات کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ سے مذہبانہ گزارش کروں گا. نمبر 1 پلیز بی بریف تاکہ سب کو موقع ملے. نمبر 2 اگر کوئی مسئلہ آگے اٹھا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا دوسری بار وہ مجھے نہیں لگتا مناسب ہے. میں وہ سارے ایشوز نوٹ کروں گا اور انشاءاللہ ان کا ذکر کس طرح کر سکتے ہیں وہ ایکسپرٹ کریں گے. نمبر 3 اس میٹنگ کا مقصد کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنا چاہیے. سارے بیٹھے ہیں منچ پہ, ان سب کو میری طرف سے سلام آداب. اجوک یہ منچ یہ بہترین چلو پبلک دربار ات مجھے کامہ لکن ہز آسان تم وون تم حل کرنے اور پور امید یہ ہیلپ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے لرننگ سے ان کو میگنیمائزیشن ہو جائے. سر مجھے معلوم ہے سر, اسی لیے تو میں آپ کی بالکل آپ نے پریشان کیا. میں گزارش کروں گا سب سے ابھی اس کے بعد ہم بات کریں گے. جی سر. آپ جانتے ہیں یہاں تھوڑا سا قدرت ہے, فقران ہے, بڑی بلڈنگس کا اور انفراسٹرکچر کا, یو نو دیٹ obviously, بٹ جس طرح سے بیسٹ ہو سکے میں اس صاحب اور میں ڈسکس کریں گے. ویل سی ہاؤ بیسٹ وی کین سارٹ آؤٹ. اس میں آپ کو بھی تھوڑی ہمیں آپریشن دینی پڑے گی. آپ ایک قدم بڑھائیں گے, ضلع انتظامیہ 10 قدم بڑھائے گی, لیکن وہ ایک قدم آپ کو بڑھانا پڑے گا. بالکل سر, وہ ایک قدم ہم کمپلیٹ کرا چکے ہیں سر. میڈیکل ٹرم یاد روزان کی تم خاطر پور بارہمولہ طرف مبارک دان کہ سہ آئیڈیل آپریشن ات کور. گۄڈنیُک مسئلہ جی ایم سی ہُنٛد, چونکہ تُہۍ چھِو پانے ہیڈ کران, پرنسپل صاحب تھی سپرنٹینڈنٹ صاحب تھی اور ڈی سی صاحب بھی ہمارے یہی ہے. جی ہاں, پہلا مسئلہ ہمارا جی ایم سی میں ہے جو ہمارا ٹکٹ کا ایشو ہے. وہاں ٹکٹ کاؤنٹر کا ہم چاہتے ہیں کہ ٹکٹ کاؤنٹر کو جیسے ہم نے کووڈ میں فیبریکیٹڈ وہ کاؤنٹرز باہر بنائے تھے, ٹکٹ کاؤنٹر کو اندر سے باہر لایا جانا چاہیے. نیڈ آف دا آور ہے وہاں ہماری جی ایم سی میں MRI مشین انسٹال ہونی چاہیے. یہ ریکویسٹ ہے ہماری اور آپ سے. یہ گورنر ہاؤس میں بھی ہے, سابقہ چیف منسٹر کے ہاؤس میں بھی, اس وقت بھی انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا. ہمیں کچھ بیسک ایشوز ہیں جرنلسٹ فرٹرنیٹی کو بارہمولہ میں. بیسک ایشوز ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کے لیے. یہاں پر ہر جگہ پر چھوٹے ڈسٹرکٹس جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں سے نکلے ہیں تو ان ڈسٹرکٹوں میں آلریڈی پہلے سے آپ نے بھی سر کئی جگہوں پر ان کو آفس دیا ہے. تو صرف بارہمولہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہمارا کوئی آفس نہیں ہے, ہمیں کوئی اکاموڈیشن نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سر کسی حد تک ناانصافی ہے. ہم امن امان کے روادار ہیں سر, امن امان اور خوشحالی اور محبت کے روادار ہیں. نفرت اور اس چیز کی ہم رواداری نہیں کرتے ہیں سر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارہمولہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن کے ساتھ منسلک جو تقریباً پورے ضلع میں 43 جرنلسٹس منسلک ہیں, اور ان 43 جرنلسٹس کے لیے ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے جس کو ہم پریس کلب تو نہیں کہیں گے لیکن ایک اکٹھا جمع ہونے کی ایک جگہ کہیں گے. ہم دی جاتی ہے. اور رول میڈیا جو بیسک کنٹینٹ پرووائڈر ہے جو 95% نہیں 97% کنٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے ہم اپنے آفسز کو. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم میں سے سینئرز کو بھی جن کا بہت زیادہ کام ہے, کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں, ان کو بھی ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے. اور ہمیں کوئی ایسی سولوشن ہمیں حل سے کرائیں جس سے ہمارا اسکول بارہمولہ ہو جائے. دوسری بات پر ہم یہ ہے کہ گرودوارا ہمارا گلمرگ میں جو ہمارا اس وقت گرودوارا ہے, ہمیں جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہمیں اس کو کنسٹرکشن کرنے کی
प्रोविजनल एरिया है, 2-3 साल से हमने एप्लीकेशन भी दी थी, मैडम साहब को भी हमने कुछ एप्लीकेशन दी थी, उस समय इलाका तेम रोड खतर सफर कर ब्याक रोड वीरनाथ टू मस्जिद आंगन तथ टची कुन साइड तुम जगाम सफर कर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोड तुम जगाम पत्थर पेमत न तुम चंदूसा साइड इन सोल्यूशन न हदपुरा साइड तुम इन सोल्यूशन बाग टू नवगाम फकीर बाग टू शुमरान बिल्कुल रोड खस्ता हाल तथ अगर नो गाड़ी तन तथ नेर मुश्किल 15 दो डिपार्टमेंट नवातन करा कि आब किल्लत तेल बना पे पुलिस क्या लर्न एट प्रॉब्लम करा यह डिपार्टमेंट की कमजोरी कमजोरी ये कलस ट्रांसफर पे आब आब प्रॉब्लम मगर आब प्रॉब्लम डिपार्टमेंट दस कित तमाम बारामूला सोपोर आब कंडी ट्रांसफर पे तत पाइप बिछावान आम पाइप डायरेक्ट मैन पाइप पे कनेक्शन डिपार्टमेंट खमी तत पे मैन लोन पे कनेक्शन दिखम या कैसन जान हूल आमद दिन दान लॉकन सीजन या मकान सीजन लागन तुम ज़राअत कि तमाम गाँव कर सफर करके ये निकाल लिया और PHC कर लिया। मेरे पास मैन पावर कहीं न कहीं से निकालना है, मैन पावर निकालना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज बारामूला से जो मेडिकल ऑफिसर है वो उठाने पड़ेंगे, वो यहाँ डालने पड़ेंगे। दैट मीन्स जो मरीज वहाँ बारामूला मेडिकल कॉलेज जाना है टर्शरी केयर के लिए उसको यहाँ दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मुझे 2 मिनिमम उठाने पड़ेंगे, पैरामेडिक उठाना पड़ेगा। वो मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये इसका मिनट्स जरूर निकाले ताकि जो भी कंसर्न महकमा जाते हैं उनके साथ फॉलो अप कर सके और इन इश्यूज के बारे में उसका एक बड़ा पर्टिकुलर गाइडलाइन है कि लेटर से 5 किलोमीटर के अंदर दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं बनता जनरली, PHC हो या बिल्कुल सर डिसमेंटल किया है डिपार्टमेंट ने सर, क्योंकि वो रोड वाइडिंग में आ रहा है सर, तो उसका अभी तबादला नहीं हुआ सर। कुछ बहुत अच्छे लगभग 2-3 हजार स्टूडेंट सर वहाँ पढ़ते हैं, उसका भी अभी तक कोई ऑल्टरनेट हमें वे आउट नहीं हुआ सर। मंदिर और तीसरी वहाँ की मस्जिद, तीनों जगह तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया, जिला इंतजामिया ने कर दिया है क्लियर। उसमें अब इशू ये है कि वो हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने रखना है शायद, तो इन्होंने वो ऑलरेडी रखवा दिया है। वो 2.5 किलोमीटर सर लास्ट प्रोटेस्ट एक एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए हमारे गांव में सर। वहां पे तो कम से कम हर एक के पास गाड़ी है और 2-4 फार्म भी है सर वहां पे। ICU का मतलब ये है कि 24/7 एक पेशेंट के साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 4 सपोर्ट स्टाफ साथ रहे। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि बारामूला में मेडिकल कॉलेज में मेरे पास देयर आर ओनली 6 एनेस्थेटिस्ट, उनको तीनों हेल्प करने पड़ते हैं। एनेस्थेटिस्ट को नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ऑपरेट किया उसके बाद पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना है, लेकिन कोई डुएबल चीजें जरूर बोलिए ताकि उनका फिर मंत्र के अंजाम तक चीजों को पहुंचाए। अब आप पहले वक्त के साथ स्टार्ट कीजिए, आप करें स्टार्ट। ACR साहब, JD साहब जो यहाँ हमेशा से बारामूला की तामीर, तरक्की और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के शाना बशाना साथी रहे हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा शुक्रिया अदा करना कि आपने अपना टीम निकाल के यहाँ आप तशरीफ लाए। पब्लिक दरबार और इस तरह के फंक्शंस का बेसिक मकसद अवाम और सरकार के बीच में रिश्ते को और उस्तवार करना है। आपके मसाइल मैंने फर्दर नोट किए हैं और इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो मसले फौरन हल हो सकते हैं उनको इमीडिएटली नोटिस में लेके मुतल्लिका महकमा जात से इंश्योर किया जाएगा कि रिजॉल्व किया जाए। जो इसमें से ऐसे मसले हैं जो सेक्रेटेरिएट लेवल पर भेजने हैं या जिनके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है या जिनके लिए
कोई इस तरह का पेचीदा मसला है, उनके लिए भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका परसिस्टेंट फॉलो अप मेरे लेवल पे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर की लेवल पे होगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंतज़ामिया के साथ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का जो ये मॉडल पब्लिक दरबार का मॉडल है, ये गालिबन सबसे बेहतरीन मॉडल है जहाँ आपकी राय को सुना जाता है, आपकी राय को रिकॉर्ड किया जाता है और उस राय पे अमल किया जाता है और उन मसले मसाइल को हल किया जाता है। उन मसाइल को इसी तरह से बारामूला की तरक्की, तामीर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ सरकार के शाना बशाना काम करते रहिए। बारामूला अपने आप में इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और पूरे मुल्क में बारामूला की कारकर्दगी के बारे में बात की जाती है कि बारामूला और बारामूला के लोग कितने और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं। हमेशा सरकार ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में हिदायत ये दी है कि सरकार और इंतज़ामिया और अवाम के दौरान रिश्तों को और उस्तवार करना और रिश्ते को और बेहतर और कनेक्ट जनरल पब्लिक के साथ उनके मसाइल हल करने, ये टॉप प्रायोरिटी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की। इसी तनाजुर में आज बारामूला में बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक दरबार मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने, आपकी सिविल सोसाइटी ने, मुख्तलिफ गाँव देहात से जो लोग तशरीफ़ लाए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतल्लिक और बाकी महकमा जात से मुतल्लिक उनके अपने जो इशूज़ हैं वो एस्केलेट किए, जो मैंने बहस्ते सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड विजिटिंग ऑफिसर एंड ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने और पूरे ऑफिसर्स की टीम ने बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन से सुने और नोट किए। इसमें से चंद ऐसे मसाइल हैं which will be immediately sorted out, they are solvable, inter-department coordination। कुछ मौके पे ही हिदायत दी गई, मैंने कुछ हिदायत दी है कि फ़ौरन मौके पे जाके उन मसाइल का इजाला कराया जाए, जैसे कहीं सड़क का इशू था या पानी का इशू था। इसी तरह से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लगेगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि नीयत इस चीज़ की है कि इसको फ़ौरन से पेशतर हर मसले को सॉल्व किया जाए। इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी आई जो डिमांड्स मैंने नोट की हैं, इसका रिगरस फॉलो अप किया जाएगा इस सब के लेवल पे, मेरे लेवल पे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये आज पब्लिक दरबार यहाँ हुआ बहुत फ्रूटफुल आउटकम और नताइज निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं लोगों का, बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में हमेशा बारामूला के लोग पब्लिक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का सबूत देते हुए आवाम सरकार के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे चलाती है। यहाँ पे हमेशा से ये रीत रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन द कंट्री। You know that Baramulla is an aspirational district and it has been performing remarkably well and getting international and national accolades. अभी यहाँ WHO की टीम्स आई थी, यहाँ बेहतरीन कारकर्दगी की बेसिस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का अवार्ड्स मिलते रहे हैं बारामूला को। मुझे लगता है इसी जानिब, इसी रास्ते पे बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को साथ लेते हुए रहेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि बारामूला आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन के उभरेगा। गुजारिश करना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब बिल्डिंग के साथ साथ एंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन रिसोर्स होता है। उसमें आपने डॉक्टर्स देने हैं, उसमें आपने पैरामेडिक्स देने हैं, उसमें आपने 10 तरह की और सहूलियात देनी है, मैन एंड मशीनरी देनी है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये, एंड देयर आर वेरी स्पेसिफिक
क्लियर कट गाइडलाइंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कि पीएचसी हो तो उसकी इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, सीएचसी हो तो उसकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एसटीएच की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स पाई गई हैं कि जो लेट अस से पीएचसी नज़दीकी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और एक और बिल्डिंग बनाई गई है जिसको एक और एनटीपीएचसी बनाया गया है, तो मुझे लगता है हमें इस जानिब ओवरऑल एज ए हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी देखना चाहिए क्या उन बिल्डिंग्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे पास उसको मोबिलाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है। यू आर अवेयर दैट बारामूला नाउ हैज़ ए मेडिकल कॉलेज और बारामूला मेडिकल कॉलेज में नॉर्थ कश्मीर के काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो इस तरह का हमने मैन पावर और एसेट का ऑडिट करना ज़रूरी है, जहाँ देखा जाए कि किस तरह से अपने एसेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से पेशेंट केयर और पेशेंट वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, रादर दैन एनी अदर कंसिडरेशन कि 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पे 2 पीएचसी, वो मुनासिब भी नहीं है, गाइडलाइंस के हिसाब से भी नहीं है और उससे अल्टीमेटली पेशेंट केयर और पेशेंट वेलफेयर पे एक मनफी असर पड़ता है। इक्विपमेंट अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द कंट्री, एंड मेरी ये हिदायत रही है मेडिकल कॉलेज बारामूला में मुझे कुछ दिन पहले हुआ, उसमें ये मैंने हिदायत दी है कि जो भी बेस्ट अवेलेबल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस इक्विपमेंट हो वो अस्पताल के अंदर ही हो। कोई ऐसा टेस्ट मुझे नहीं लगता बहुत शाज़ो नादिर है, इसको बाहर करने की ज़रूरत पड़ेगी।